بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل ہم نے جو ٹاپک سٹارٹ کیا تھا ٹائپس آف ایررز، اس کا پارٹ 1 ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایک ایرر کی ٹائپ ہم نے پڑھی تھی سینٹیکس ایرر۔ دو ٹائپس ہماری رہتی تھی جو آج ہم نے پڑھنی ہے، رن ٹائم ایرر اینڈ لاجیکل ایرر۔ رن ٹائم ایرر اینڈ لاجیکل، تو ٹوٹل بگس کی 3 ٹائپس ہیں: syntax error, second runtime error, اور third logical error۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ لانگ کویسچن بن سکتا ہے اس میں سے کہ ایرر کیا ہوتے ہیں، اس کی ٹائپس کتنی ہیں۔ یہ جو ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا نا پرابلم سالونگ، اس کے جو 9 میجر سٹیپس ہیں، وہ 9 میجر سٹیپ یہ نہیں کہ لانگ کویسچن ایک ہی یہ لانگ کویسچن ہے، ان سٹیپس میں سے بہت سارے لانگ کویسچن 1 بائی 1 ہمارے آ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن اور اسپیسیفائی ریکوائرمنٹس، یہ 2 سٹیپس ہیں، ان پہ نوٹ آ جائے لانگ کویسچن میں، یا الگوریتھم اور فلو چارٹ اس پہ نوٹ آ سکتا ہے لانگ کویسچن میں۔ تو یہ صرف ایک ٹاپک نہیں ہے کہ ہم ایک ہی لانگ کویسچن کور کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، یہ سمجھ لیں ہمارے 4-5 لیکچرز تو ابھی ہو چکے ہیں، اور اس میں سے تقریباً 6 لانگ کویسچن بنتے ہیں اس ایک ٹاپک سے، یہ جو پرابلم سالونگ کا ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ تو ان میں سے ایک لانگ کویسچن 8 نمبر کا یہ بھی بن سکتا ہے۔ ایرر کیا ہوتے ہیں، ان کی ٹائپس کتنی ہے، تو 1 بائی 1 انہیں ایکسپلین کرنا ہے۔ تو ایک ایرر کی ٹائپ ہم پڑھ چکے ہیں، سینٹیکس ایرر۔ سینٹیکس میں نے بتایا تھا کہ کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں پروگرام رائٹ کرنے کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ ہر پروگرام انہی رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق ہی بنتا ہے، تو ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو ہم سینٹیکس کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی پروگرامر پروگرام بناتے وقت ان رولز کی وائلیشن کر دے گا، رول میں نے بتایا کہ کہیں پر کاما لگانا ہے ہم نے نہیں لگایا، کہیں پر سیمی کالن لگانا ہے ہم لگانا بھول گئے، کسی کی ورڈ کو ہم مس اسپیل کر گئے، تو یہ رولز کی وائلیشن ہے۔ تو جب بھی رولز کی وائلیشن ہوگی تو جو ایرر ہمارے سامنے آئے گا وہ ایرر ہوگا سینٹیکس ایرر۔ اور اس ایرر کا ایک بینیفٹ یہ ہے کہ یہ ایرر ہمیں خود سے ڈھونڈنا نہیں پڑتا، بلکہ جو بھی ٹرانسلیٹر ہم یوز کر رہے ہیں وہ ٹرانسلیٹر ہمیں بتا دیتا ہے کس لائن پہ ایرر ہوا ہے، ہمیں ساری رپورٹ دے دے گا کہ سینٹیکس ایرر ہوا، فلاں سٹیٹمنٹ میں یہ ایرر ہے، تو ہم صرف ایک سٹیٹمنٹ کو پڑھیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا یہاں پر ہم سے مسٹیک ہوئی ہے۔ تو ان ایررز کو ڈھونڈنا ہمارے لیے آسان ہے۔ کیوں آسان ہے؟ کیونکہ ٹرانسلیٹر خود ہمیں ڈھونڈ کے بتا رہا ہے کہ کہاں پر کس سٹیٹمنٹ میں ایرر ہے، ہم فوراً اس سٹیٹمنٹ کو دیکھ کر آسانی سے اس ایرر کو ہم ریموو کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے کل میں نے بتایا اس کویسچن کا ایک پارٹ اور بھی ہے، which errors are most difficult to find and remove، کون سے ایسے ایررز ہیں جن کو ڈیٹیکٹ کرنا، فائنڈ کرنا، ڈھونڈنا اور ریموو کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو سینٹیکس ایرر کو ڈیٹیکٹ اور ریموو کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ آسان کیوں ہے؟ ٹرانسلیٹر خود بتا رہا ہے یہاں پر اس جگہ پہ ایرر ہے۔ کل والی مثال جو میں نے دی تھی کہ اگر آپ ایک ایسے لکھ کر لاتے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں اس میں 10 مسٹیکس ہیں، آپ خود ڈھونڈیں، تو ان کو پھر مسٹیکس کو ڈھونڈنا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن میں انڈر لائن کر کے دوں تو پھر تو آپ ایزیلی اس کی کریکشن کر سکتے ہیں۔ تو سمجھ لیں سینٹیکس ایرر جب سامنے آئے گا تو یہی سمجھ لیں ہمیں ہر چیز انڈر لائن ہوئی مل رہی ہے، اس طرح سملرٹی میں دے رہا ہوں نا، انڈر لائن کر کے دوں۔ سینٹیکس ایرر ٹرانسلیٹر ہمیں پوری رپورٹ بنا کر دے گا کہ یہ جو ایرر ہوا ہے یہ اس وجہ سے ہوا ہے، اس کا یہ کوڈ ہے، اس
लाइन नंबर पे एरर है तो फौरन से हम डिटेक्ट कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा। तो इट मींस ये वो वाला एरर है जिसे डिटेक्ट और रिमूव करना हमारे लिए आसान है। सेकंड एरर, रन टाइम एरर। रन टाइम, प्रोग्राम बन चुका है, प्रोग्राम बनने के बाद हम उस प्रोग्राम में कोई रॉन्ग इनपुट करते हैं, कोई डाटा ही गलत इनपुट करते हैं, तो वो तो हमें आउटपुट जनरेट करके नहीं देगा। फॉर एग्जांपल, इसकी जो एग्जांपल्स लिखी हुई है, एक मिसाल मैं दे रहा हूं कि कोई ऐसी फाइल जो मौजूद ही नहीं है, हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो एरर तो जनरेट होगा, वो रन टाइम एरर है। अगर मेरी फोन बुक में कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है फोन बुक, उसमें किसी का नंबर सेव ही नहीं है, सर्च में मैं बार बार लिखता रहूं, उसका नाम लिखता रहूं, तो नंबर पहले सेव होगा तो खुलेगा। तो इस तरह के एरर रन टाइम एरर्स हैं। या फिर एक जो स्टार्ट में हमने एक मिसाल ली थी कि हमने एक कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकते हैं, तो मैथ्स का एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं छोटा सा 2 + 2, उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, इलीगल क्या है, अब कैलकुलेटर तो एक्यूरेट बना हुआ है, इलीगल काम क्या है, रॉन्ग इनपुट क्या है, मैं कर देता हूं 5 डिवाइडेड बाय 0, 5 डिवाइडेड बाय 0, तो हम किसी नंबर को 0 पे डिवाइड कर ही नहीं सकते। मैं बार बार जिस नंबर को मर्जी है डिवाइड 0 पे करता रहूं, वो तो मुझे आउटपुट नहीं देगा। तो क्या ये मैं ये कहूंगा कैलकुलेटर गलत बना हुआ है? कैलकुलेटर तो ठीक बना हुआ है, उसकी कोडिंग, उसकी प्रोग्रामिंग बिल्कुल 110% एक्यूरेट हुई है, तो फिर क्यों नहीं रिजल्ट जनरेट हो रहा? फिर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम इनपुट ही गलत कर रहे हैं, जो डाटा हम एंटर कर रहे हैं वो गलत एंटर कर रहे हैं। गलत डाटा होगा तो आउटपुट तो जनरेट नहीं होगी। तो जब भी हम कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म कराने की कोशिश करेंगे किसी भी प्रोग्राम से, तो जो एरर सामने आएगा वो रन टाइम। इसकी 2 एग्जांपल्स मैं दे चुका हूं। एक, किसी नंबर को 0 पे डिवाइड करना, वो हो ही नहीं सकता, रन टाइम एरर। सेकंड, कोई ऐसी फाइल ढूंढने की कोशिश करना जो मौजूद ही नहीं है, जो सेव ही नहीं है, तो रन टाइम एरर आएगा। थर्ड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है इसमें से, वो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, व्हिच एरर्स आर मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव एंड व्हाई, तो वो हमारा टॉपिक है लॉजिकल एरर। थर्ड टाइप है एरर की लॉजिकल एरर। अब ये कौन सा एरर है? पुअर लॉजिक की वजह से। बुक में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है कि ये एरर आता है प्रोग्रामर की पुअर लॉजिक की वजह से। उसने या तो प्लानिंग ठीक से नहीं की, फ्लो चार्ट वगैरह बनाते वक्त गलती हो गई, एल्गोरिथम बनाते वक्त गलती हो गई उससे, या वैसे टाइपिंग के दौरान उसने कोई सिंबल प्लस का लगाना था माइनस का लगा दिया, वो लॉजिकल एरर है। अब लॉजिकल एरर्स ऐसे एरर्स हैं जो प्रोग्राम को क्रैश नहीं करते। सिंटैक्स एरर तो मैंने बताया था कि अगर प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, कंपाइल नहीं होगा, कंपाइल नहीं होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर प्रोग्राम ट्रांसलेट नहीं होगा तो हम उसे चला भी नहीं सकते। लॉजिकल एरर वो वाहिद एरर है जो प्रोग्राम में आएगा, प्रोग्राम ट्रांसलेट भी होगा, चल भी जाएगा, आउटपुट भी देगा। अब ये फिर कौन सा एरर हुआ कि प्रोग्राम को ट्रांसलेट भी कर रहा है, चला भी रहा है, आउटपुट भी दे रहा है, तो फिर ये कौन सा एरर है? आउटपुट गलत होगी। आउटपुट हमारी जो आउटपुट उसने जनरेट करके दी होगी वो गलत होगी। फॉर एग्जांपल, एक बंदा बुक शॉप बना के बैठा हुआ है, वहां पर उसने एक स्टॉल सा लगाया हुआ है, बुक की कीमत है 100 रुपए, जितनी भी बुक्स है उनकी कीमत है 100 रुपए। उसने किसी को कहा कि यार मुझे प्रोग्राम बना कर दो जिसमें मैं क्वांटिटी एंटर करूं। एक बंदा 3 किताबें लेता है, मैं सिर्फ क्वांटिटी लिखूं, उसका बिल प्रिंट होके बाहर आ जाए, जिस तरह वो छोटे से वो प्रिंटर आजकल पड़े हुए, बिल प्रिंट होके बाहर आ जाए। तो अब उसमें फार्मूला क्या लगना चाहिए? क्वांटिटी
मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। अब एक बंदा बुक्स लेता है 5, तो ये होना चाहिए 5 मल्टीप्लाइड बाय एक बुक की कीमत है 100, तो तब रिजल्ट जनरेट होगा 500। तो प्रोग्राम की कोडिंग करते वक्त हमसे एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक प्रोग्रामर से क्या हो गई कि उसने जब फार्मूला लगाया तो लिख दिया क्वांटिटी प्लस प्राइस। लगाना क्या चाहिए था, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाना चाहिए था, गलती से क्या लगा गया, प्लस का। अब कंप्यूटर तो मल्टीप्लाई भी करता है, प्लस भी करता है, कंप्यूटर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता है और प्लस भी कर सकता है। अब प्रोग्राम चलाएगा, क्वांटिटी में 5, प्राइस में 100, आउटपुट आ गई 105। अब जब बिल प्रिंट होकर आएगा 105, तो उसके सामने उसे पता तो चलेगा 5 किताबें ली हैं, 105 रुपए कैसे बिल बन गए, ये तो हंड्रेड्स में होना चाहिए, या 100 या 200 या 500 या 8 लिए तो 800, इस तरह से होना चाहिए। तो ये 105 कैसे आ गया, तो फिर चेक किया जाएगा, जब कोडिंग में देखेंगे तो पता चलेगा मल्टीप्लिकेशन की जगह पे हमने प्लस का सिंबल लगा दिया। अब प्रोग्राम ट्रांसलेट भी हुआ, प्रोग्राम ने आउटपुट भी दी, लेकिन वो आउटपुट अनएक्सपेक्टेड थी, वो रॉन्ग आउटपुट थी। तो फिर हम क्या करेंगे, रॉन्ग आउटपुट जब जनरेट हुई तो हम कोडिंग को पढ़ेंगे। ये तो मैंने बड़ी सिंपल सी मिसाल दी है, ये तो हमें फौरन से डिटेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी मिस्टेक हमने की है जिससे आउटपुट गलत आ रही है, हमें ये नहीं पता चल रहा क्यों गलत आ रही है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे प्रोग्राम की कोडिंग को थारोली हमें पढ़ना पड़ेगा। हम डिटेल से पढ़ेंगे, फिर हमें पता चलेगा इस जगह पे एरर हुआ है। तो ये वो रीजन है लॉजिकल एरर्स को डिटेक्ट। हमारे इस क्वेश्चन में एक मैंने जो फॉल्ट अभी बताया कि किन एरर्स को ढूंढना और रिमूव करना मुश्किल है, तो लॉजिकल एरर्स को डिटेक्ट करना और रिमूव करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि ये खुद हमने ढूंढने, हमें ट्रांसलेटर या कंप्यूटर इनका एरर मैसेज नहीं देगा, इनकी एरर रिपोर्ट हमें कंप्यूटर नहीं देगा, हमें खुद इस एरर को ढूंढना पड़ेगा। जब हम पूरी कोडिंग को डिटेल से पढ़ेंगे उसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। जब पूरी कोडिंग को डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें हमारा काफी सारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो यही वो रीजन है कि लॉजिकल एरर्स को डिटेक्ट और रिमूव करना मुश्किल है। एक तो ट्रांसलेटर डिटेक्ट करके नहीं देता, हमें खुद से ढूंढने पड़ते हैं। फिर ढूंढने के लिए हमें पूरे प्रोग्राम की जो कोडिंग है उससे डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो एक तो इसकी मिसाल मैंने दी कि मल्टीप्लिकेशन की जगह पे हमने प्लस का सिंबल लगा दिया। एक प्रोग्राम अगर मुझे कहा जाता है कि स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करें जिसके 40% के इक्वल या ग्रेटर देन है, जिसके 40% के इक्वल है या ग्रेटर देन 40% है, उसका डिस्प्ले कर दे आगे पास, बाकियों का डिस्प्ले करता जाए फेल। तो मैं अब कोडिंग कर रहा हूं, इससे एक माइनर सी मिस्टेक होगी। जब मैंने लगाया इफ 9 नंबर कोई भी 10 20 30, इफ मार्क्स के लिए वेरिएबल मार्क्स आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40। अब लगाना ये चाहिए था कि अगर नंबर 40 के बराबर या उससे ज्यादा है तो फिर दिखाए देन प्रिंट पास, एल्स प्रिंट फेल। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर नंबर 40 के बराबर या उससे ज्यादा होंगे तो क्या डिस्प्ले करो, पास। अगर कम है, अगर ये कंडीशन गलत हो रही है तो डिस्प्ले करो फेल। ये दो स्टेटमेंट्स हैं। अब स्टेटमेंट ये लगानी चाहिए थी कंडीशन के अंदर, हमने ग्रेटर देन का सिंबल यूज करना था। मैं यहां पर गलती क्या कर जाता हूं, इफ मार्क्स आर  or  , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 ,
अब मिस्टेक एक हुई है कि अगर नंबर बराबर है या 40 से कम है तो फिर डिस्प्ले करो पास। अब इसका तो ये मतलब है कि 40 से कम वाला वो पास डिस्प्ले करेगा और जिसके 40 से ज्यादा है वो फेल डिस्प्ले करेगा। अब मिस्टेक माइनर सी हुई लेकिन प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ, प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ, प्रोग्राम ने कोई एरर रिपोर्ट हमें नहीं दी, प्रोग्राम ने हमें आउटपुट दे दी लेकिन वो आउटपुट गलत थी। गलत कैसे? कोई बहुत ही लाइट स्टूडेंट है, जब उसके नंबर मैंने देखे रीमार्क्स में देखा तो फेल लिखा हुआ आ रहा है। एक और बहुत ही लाइक स्टूडेंट है, जब मैंने उसका देखा उसका भी फेल डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन एक निकम्मा तरीन स्टूडेंट है उसका पास लिखा हुआ आता है। कमाल हो गया। चलो एक और निकम्मे स्टूडेंट का नाम सामने आया, उसका भी पास लिखा हुआ आ गया, तो फिर मुझे पता चलेगा कि ये जो आउटपुट जनरेट हुई हुई ये तो गलत है, ये आउटपुट सारी की सारी गलत है। फिर मैं प्रोग्राम को देखूंगा, फिर कोई डाटा दूंगा, फिर चेक करूंगा। फिर मैंने डाटा दिया 30 लिखा तो उसने डिस्प्ले कर दिया पास, हालांकि 30 वाला तो फेल होना चाहिए था। तो फिर कोडिंग को मैं पढ़ूंगा, उसमें देखूंगा, चेक करूंगा, लेसर देन की बजाय मैं लगा दूंगा ग्रेटर देन, एक सिंबल चेंज करूंगा, तब वो प्रॉब्लम मेरा हल होगा। तो ये हमारा टॉपिक है एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर्स। ये हमारा जो एक पॉइंट हमने पढ़ा है टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम, टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम। उसमें हमने बग की डेफिनेशन पढ़ी थी, बग एरर्स को कहते हैं। फिर डीबगिंग क्या होती है, एरर्स को डिटेक्ट करके उन्हें रिमूव करना। फिर एरर की टाइप्स, ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है। एक नेक्स्ट पॉइंट है इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन या इसे इंप्लीमेंट द प्रोग्राम भी हम कह सकते हैं। ये 7वां स्टेप है। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप सारे कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से स्टेप हम कर चुके हैं? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, एनालाइज द प्रॉब्लम, डिजाइन एल्गोरिथम एंड ड्रा फ्लो चार्ट, राइट द प्रोग्राम, जिसे कोडिंग भी कहते हैं। छठा पॉइंट हमने पढ़ा था टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम, जो आज हमारा कंप्लीट हुआ। 7वें नंबर पे इंप्लीमेंटेशन। अब ये क्या है? प्रोग्राम की कोडिंग हो गई, हमने पूरा सैंपल डाटा बार बार देकर, मुख्तलिफ किस्म का डाटा देकर मैंने उसे टेस्ट कर लिया। जितने एरर्स आए वो सारे मैंने अलग से नोट भी किए, फिर उन एरर्स को मैंने ढूंढ कर उन्हें रिमूव भी किया। मैंने सारी डिटेल भी डॉक्यूमेंटेशन में लिख दी कि जब मैंने कोडिंग की मेरे सामने ये एरर आया, मैंने उन्हें ऐसे रिमूव कर दिया। तो अब प्रोग्राम में कोई एरर बाकी नहीं है। जिस तरह मैंने शुरू में एक मिसाल दी थी, सर सफीर अगर कहते हैं कि बच्चों के घर में मैसेज चला जाए अगर 8:30 तक बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगती तो उनके घर में जो कॉन्टैक्ट नंबर उन्होंने दिया हुआ है उस पर मैसेज चला जाए, तो मैं बार बार चेक करूंगा। एक बंदे का डाटा एंटर किया, उसकी अटेंडेंस 8 तक लगा दी, फिर चेक किया उसमें कोई फेक मोबाइल नंबर डाल के जो मेरे पास ही पड़ा हुआ है, चेक किया कहीं इस पे मैसेज तो नहीं चला गया, यही टेस्टिंग है। फिर एक और फिंगरप्रिंट में ऐड करूंगा जिसमें मैंने फिंगरप्रिंट लगाया बायोमेट्रिक पे 8:35 पे, फिर उसके साथ मैंने जो कांटेक्ट नंबर ऐड किया, फिर मैं चेक करूंगा क्या इस पे मैसेज गया है, क्या आपका बच्चा लेट आया है। तो अगर मैसेज चला जाता है तो मैं पूरी तसल्ली करूंगा, बार बार डाटा दूंगा, बार बार चेक करूंगा। जब फाइनलाइज हो गया कि अब इसमें कोई एरर नहीं है, जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स थी उसकी रिक्वायरमेंट्स के बिल्कुल मुताबिक जो चीज वो चाहता था वैसी बन चुकी है, तो फिर मैं इंप्लीमेंटेशन करूंगा। अभी तक ये काम, अगर मैं प्रोग्रामर हूँ यहाँ तक काम तो मेरे जिम्मे था, मैं अपने ऑफिस में अपने घर में बैठकर अगर काम कर रहा हूँ तो ये सारा वर्कआउट मेरा है। इंप्लीमेंटेशन में मैं क्या करूंगा? कॉलेज में आऊंगा, कॉलेज में जिस सिस्टम पे वो सॉफ्टवेयर यूज होना है उस पे मैं इंस्टॉल करके दूंगा, उन्हें मैं इंस्टॉल करके दूंगा। फिर जिन जिन बंदों ने यूज करना है उन्हें मैं गाइड करूंगा कि इसको ऑपरेट ऐसे करना है।
آپ نے فلاں آپشن یوز کرنا ہے تو وہ آپشن اس جگہ پہ ہوگا، آپ نے یہ کام کرنا ہے تو وہ ایسے ہوگا، آپ نے اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا انٹر کرنا ہے تو وہ ایسے ہوگا۔ تو یہ عمل کہلائے گا امپلیمنٹیشن۔ امپلیمنٹیشن کیا ہے کہ میں نے سسٹم بنا لیا، تسلی کر لی کہ اس میں اب کوئی ایرر باقی نہیں ہے، تو میں آفس میں جن بندوں نے ڈیمانڈ کی ہوئی تھی کہ مجھے یہ بنا کر دیں، سافٹ ویئر بنا کر دیں، تو میرے لیے تو وہ ایک طرح کا پرابلم تھا، پرابلم سالو ہو گیا۔ اب میں ساری کوڈنگ میں نے کر لی، اب میں نے ان کے سسٹم میں آ کر اس سافٹ ویئر کو انسٹال کیا جو میں نے بنایا، ریڈی ٹو یوز کر کے دوں گا، پھر انہیں بتاؤں گا، گائیڈ کروں گا کہ آپ نے اس کو آپریٹ ایسے کرنا ہے۔ تو یہ عمل کہلائے گا امپلیمنٹ دا پروگرام، امپلیمنٹیشن۔ تو یہاں تک سارا سسٹم ان کے پاس پہنچ چکا، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ جو 2 پوائنٹ ہیں انشاءاللہ ہم کل ہی کریں گے، کیونکہ اس میں ڈاکومنٹیشن الگ سے لانگ کویسچن بھی بن سکتا ہے، اور ایک مینٹین اینڈ اپڈیٹ دا پروگرام جو سے پہلے والا سٹیپ ہے وہ تو بڑا سمپل سا ہے۔ تو آپ نے، میں بار بار اسی چیز پہ فوکس کر رہا ہوں کہ جو سیکوینس ہے، اس سیکوینس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اگر اس کو آپ ریورس کریں گے، کوئی پوائنٹ آگے پیچھے کر دیں گے تو یہ سارا غلط ہو جائے گا۔ اس کی مثالیں میں کئی بار دے چکا ہوں کہ جس طرح وہ چائے بنانی ہے تو اس کی سیکوینس ہم چینج کریں گے تو یہ لانگ کویسچن اس ایک ٹاپک سے 5 سے 6 لانگ کویسچن بنتے ہیں۔ تو ان کو پھر تیار اس طرح سے کرنا ہے، بکس آپ کے پاس آپ نے لے لی ہوں گی تقریباً سب بچوں نے، تو جو جو پوائنٹ یہاں پر ایکسپلین کیے جا رہے ہیں، کیونکہ بک کا سارا میٹیریل تو یہاں پر چھاپ نہیں سکتے ہم، تو مین ہم نے کیا ایک ہیڈنگ کو لینا ہے، اس میں جو کچھ میٹیریل، جو کچھ کنٹینٹ لکھا ہوا ہے اس سب کو میں نے ایکسپلین کرنا ہے، جو میجر پوائنٹس ہوں گے وہ میں نے یہاں پر لکھ دینے۔ تو آپ نے جو آپ کا ہوم ٹاسک ہے، ایک تو آپ نے یہ لیکچر جتنے بھی ہیں آن لائن یہ لازمی سننے ہی سننے ہیں، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کیوں لازمی ہے، آپ کا ٹائم تاکہ ضائع نہ ہو۔ بک سامنے رکھنی ہے، لیکچر سننے کے بعد جو 2-3 پوائنٹس پڑھائے گئے ان کی ریڈنگ آپ نے 2 سے 3 بار لازمی کرنی ہے، تب یہ باتیں آپ کی ساتھ ساتھ کلیئر ہوتی جائیں گی۔ تو تھینک یو سو مچ۔ کل انشاءاللہ نیکسٹ جو 2 پوائنٹس ہیں، مینٹین اینڈ اپڈیٹ دا پروگرام اور ڈاکومنٹیشن، وہ ہم کریں گے۔